Yes. Riddhi, are you Yes. able to listen? Sir, your voice is somewhat breaking. Hello. Because there is fluctuation right now, and it is even sitting in the of my flat. Net is not working properly. Okay. Let us see how does it. Na? Okay. Yes, Hirak Tiwari, are you able to listen me? Hirak Tiwari, is my voice is coming? Sir, your voice is not clear but coming. Okay. So hope that after some time properly. Okay. थोड़ा सा देखते हैं because just it is happening with me also. है ना? Okay. So let's start the today class. Okay. So I'm going to share this screen. Just wait for a this how. So would you all of you be able to see the is the PDF is visible? Is the Sir, PDF you are visible? visible. Yes, sir. PDF is visible. Okay. Well, so just a minute. So yesterday we have है ना, that grievances and demands of the peasants and women were listed about 40,000 letters, and these letters were brought by the representative of third state who belongs to the prosperous class. So from there. So there a that means the system of voting was there in the voting has been conducted. The state had one vote. मतलब जिस समय से भी ये वोटिंग प्रोसेस चली आ रही थी, ठीक है, उसी टाइम पीरियड से वहां पर एक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत कि किस आधार पर वोट डाले जाएंगे. ओके, सो वोटिंग दैट ईच स्टेट हैज वन. ओके, द प्रिंसिपल. ठीक है, ईच स्टेट हैज वन वोट, यानी जब वोटिंग होगी कि ये प्रपोजल पास होगा या टू बी डन. So in that voting, each estate had one vote. Now each estate would have total how many votes are to be given? Total कितने वोट डाले जाएंगे बेटा? Only 3 vote. Okay. 1 vote for first estate, for second estate, and 1 vote. Okay. So this time too, Louis 16 was determined to continue the set. ठीक है, अब की बार जब लुई 16 को एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ी, तो यहां पर भी लुई 16 ने वही काम किया. तो लुई 16 ने क्या काम किया? लुई 16 इस बार भी उसी प्रिंसिपल के बेस पर क्या करवाना चाहता था? वोटिंग करवाना चाहता था. यानी देयर वुड बी ओनली हाउ मेनी वोट्स? 3 वोट्स. ठीक है, एक वोट फर्स्ट स्टेट का डलेगा, एक सेकंड स्टेट का कंप्लीट डलेगा और थर्ड स्टेट
पर्टिकुलर केस में ये श्योरिटी है कि मेजॉरिटी बेसिस पर ये जो प्रस्ताव है, ये जो प्रपोजल है वो पास हो जाएगा। प्रपोजल क्यों पास हो जाएगा? क्योंकि 3 एस्टेट में से ओनली 2 एस्टेट को टैक्स नहीं देना है एंड 1 एस्टेट हैज टू पे द टैक्स। ठीक है, तो जिन एस्टेट्स को टैक्स पे नहीं करना है वो क्या के टैक्स बढ़ाने के बारे में वोट कर देंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ने से नहीं बढ़ने से उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गॉट इट? यहां तक बात आई समझ में? हेलो हीरक तिवारी। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. रिद्धि बुरड़, हेलो रिद्धि जुंगारे। Yes, sir. संध्या, इज संध्या देयर? Sir, I think she is absent. ओके, सिद्धि खुराना, सिद्धि खुराना। Okay. So members of the third estate demanded that voting now be conducted by the ठीक है, where each member would have, तो जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने अब क्या डिमांड करी? उन्होंने ये डिमांड करी कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल, यानी अब एक स्टेट का एक वोट होने के बजाय ईच मेंबर हैज टू कास्ट 1 वोट। ठीक है, तो पुराने सिस्टम में टोटल कितने वोट कास्ट होने वाले थे? 3 वोट्स। ठीक है, 1 वोट फॉर 1 एस्टेट, 1 वोट फॉर सेकेंड एस्टेट, 1 वोट फॉर थर्ड एस्टेट। नाउ what the third estate demanded, that assembly as a whole has to cast the vote. It means that each member would have 1 vote. अब each member would have 1 vote means यहां पर टोटल वो कितने वोट कास्ट करने की डिमांड कर रहे थे? 1200 वोट्स, 600 वोट, 1 vote for each member of third estate, 300 vote, 1 vote for each member of first estate, and remaining 300 vote, 1 vote for each member of the second estate. ठीक है, now this principle, that is each member would have 1 vote, एक मेंबर का क्या होगा? 1 वोट। ये ठीक है, now this was one of the democratic principle put forward by the philosophers. ठीक है, बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, है ना? So what was the democratic principle? The democratic principle was that 1 person have 1 vote and 1 value. ये हम स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हैं। 1 person 1 vote 1 value। हीरक तिवारी, Yes, sir. है ना? एंड दिस प्रिंसिपल वी कॉल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, सो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है ये उस समय के बहुत सारे फिलोसोफर्स ने कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में लिखा था। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वन सच फिलोसोफर, जीन जैक रूसो। सो जीन जैक रूसो हैज written this principle in his book. Now what is the name of the book? The name of the book is The Social Contract. ठीक है, but king not accept this demand of third estate. थर्ड एस्टेट इस एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, सो व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, है ना, राजा ने 1
मेंबर वन वोट के डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सो द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेंबर थर्ड एस्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो जो किंग लुई 16 था उसने वन मेंबर वन वोट की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी और इसलिए जो किंग है वो क्या हो गए, प्रोटेस्ट में वॉकड आउट हो गए। प्रोटेस्ट में वॉकड आउट हो गए मतलब इसके विरोध में असेंबली की मीटिंग ही छोड़ दी, ठीक है। गॉट इट? यहां तक आया समझ में? Sir. Sir. Okay. So the representatives viewed themselves as spokesman for the whole French nation, ठीक है। जो थर्ड एस्टेट के representatives थे वो ये कहते थे कि हम लोग पूरे फ्रेंच नेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। Representative of the state viewed themselves as spokesman for the whole French nation, यानी वो ये मानते थे कि इस पूरे फ्रेंच नेशन का हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। Why? Because the percentage of total population of third estate is 90%, है ना। फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें थर्ड एस्टेट की टोटल परसेंटेज कितना था, 90%, ठीक है। थर्ड एस्टेट का टोटल 90%. ठीक, यानी जब वो लोग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इट मींस दे आर रिप्रेजेंटिंग हाउ मच परसेंटेज पॉपुलेशन, 90% population. Okay, so what they say is that we are representing the 90% population and are the representative of whole French nation. 90% रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक प्रकार से हम इस पूरे फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने क्या की, वॉक फ्रॉम द एस्टेट जनरल मीटिंग, एट जनरल की जो मीटिंग थी, असेंबली थी, उससे वॉकड आउट कर दिया। वॉकड आउट मतलब बाहर आ गए, ठीक है, अटेंड नहीं किया, ठीक। और ऑन व्हाट दे डिड, जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बाकी के जो सपोर्टर थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम राजा की डिमांड के आगे नहीं झुकेंगे एंड नाउ वी विल डू समथिंग बिग अगेंस्ट द किंग। अब हम राजा के खिलाफ एक बड़ा रिवॉल्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन द ग्राउंड ऑफ है, सो 20th of June को, किस डेट को बेटा, ऑन 20 विच डेट, 20 of June. 20 June. हाँ हाँ, सो ऑन 20 of June दे असेंबल्ड इन द, ठीक है, इन द ग्राफ वर्साय हमने पढ़ा है। तो भाई वर्साय नाम के शहर में जो टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट के ग्राउंड में जो इकट्ठे हुए, ठीक है, as a nationally, not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. अब इस असेंबली में इन लोगों की क्या हुई, मीटिंग हुई और इन्होंने इकट्ठे होकर के ये डिक्लेयर किया कि दे आर नेशनल असेंबली। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल असेंबली? नेशनल असेंबली बेसिकली मींस एन असेंबली, अ ग्रुप ऑफ representative of whole nation
तो जब इन लोगों ने आप असेंबली डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने आप को होल नेशन का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। इन्होंने कहा कि हम इस पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दे सोर टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। उन्होंने ये कसम खाई कि अब हम इस असेंबली को तक तक हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बना दें एंड यानी यहां इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये डिसाइड किया, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये डिसाइड किया कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो हम फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मोनार्क मतलब जो राजा है उसकी पावर को हम पूरी तरीके से कम कर देंगे। यानी हम इस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें किंग के पास कोई खास पावर नहीं होगी। ओके, सो दे वर लेड बाय एंड, ठीक है। ये जो थर्ड एस्टेट में थे हैव लीडर्स ने, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उसमें 10-15 लोग जो थे वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत इंपॉर्टेंट पीपल थे। सो दे वर लेड बाय मैनी लीडर्स। उन लीडर्स में से with the standards, okay, so who Abe and Abesses, who were the two leaders, Mira Mirabe and Abesses, who were the two leaders beta? Okay, so Mirabe was born in a noble family, but he was convinced of the need to do a society of feudal था, ठीक है। मिराबे वॉज बॉर्न इन ए फैमिली, स्टेट को बिलोंग करता था, एट को, ठीक है। सो वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। परंतु वो पढ़ा लिखा था और फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस फ्रेंच सोसाइटी को जिस तरीके से उसने स्टडी किया, डिस्कस किया, उससे वो इस बात को मानता था कि फ्रांस में अब फ्यूडल प्रिविलेजेस यानी 3 एस्टेट का सिस्टम क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles, ठीक है। brought out का मतलब एक मैगजीन, ठीक है। तो उसने एक छोटी सी मैगजीन निकाली अपने विचारों को लेकर के, और उस दिन 20 जून को जो पूरी की पूरी भीड़ वहां जमा थी उसको उसने एक शानदार इस बारे में दिया, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड पर्सन था, सेकंड लीडर, तो सेकंड लीडर वो एबेसिस, ठीक। नाउ एबेसिस वाज ए प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब he belongs to first estate, ठीक है। So he wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? Leaders say Mirabe and Abbas, okay, they belongs to the second estate and first estate. Mirabe और Abbases second estate और first estate को belong करते थे, but okay, they are with the opinion
the pin. मानते थे कि this system of privilege is not good for the society. वो ये मानते थे कि ये जो प्रिविलेज का सिस्टम है वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. ओके, so while the National Assembly was busy constitution, the rest of France seethed with. So स्टेट के मेंबर्स को इस पूरे रिवॉल्यूशन के लिए तैयार. हेलो, यस रिद्धि जुंगारे. हेलो. Yes, sir. हाँ. यस प्रतिश्रुता. प्रतिश्रुता. Sir. Yes, sir. हाँ. Would you be able to listen me properly? Oh, just I want to see the Yes, sir. students. Yes, sir. I am listening. Sorry. हाँ. अथर्व, स्विच ऑन योर वीडियो. अपना वीडियो ऑन करो जरा. अथर्व साल्वे, स्विच ऑन योर वीडियो. रिद्धि. ओके गुड. रिद्धि. रिद्धि असावरी. ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर वीडियोज. सारे स्टूडेंट अपना वीडियो करो जरा. सारे स्टूडेंट्स ऑन करो. मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके सबको देख रहा हूं. सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है. हाँ बेटा, वो तो नेट का इश्यू रहेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते. जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो. पूजा विदाते. प्रतिभा पांडे, स्विच योर वीडियो. कार्तिकेय. कार्तिकेय बुरघाटे, स्विच ऑन योर वीडियो. वीडियो ऑन करो. सानिका. ना सारे स्टूडेंट्स के वीडियो ऑन रहेंगे, ठीक है. करके स्विच ऑन योर वीडियो. वुड बी एबल टू. कार्य आर्य तपासे. पूजा विधाते. मोहिनी. स्टूडेंट स्विच ऑन देयर वीडियोज. अपने अपने मोबाइल के वीडियो करो. It means there are many who are just moving out, है ना. उनका स्विच ऑन योर वीडियो. दिव्यांका अपना वीडियो ऑन करो. Well, so let us continue where we left. So in next paragraph, we are going to have a small discussion about ki what was happening in rest part of the country. ठीक है. Is my voice coming now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The screen is not Yes, sir. visible. हाँ, it will come sir, बेटा, है ना.
अभी आ जाएगी, अब आ गई? No, sir. No, sir. नो, आई Yes, एम sir. आई एम Yes, sir. शेयरिंग Now दिस। it is visible. हाँ बेटा, ये Now क्या it is है, visible. थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग व्हेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, है ना? सो मैं जब एक बार से स्विच ऑफ करके दूसरी बार लेता हूं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने पहले कंफर्म किया। चलिए ना, सो अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब वर्साय में एक्टिविटीज हो रही थी, सो व्हाट वाज द कंडीशन इन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो while the National Assembly was busy at Versailles ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि जब जिस समय पर 20 जून के आसपास वर्साय में नेशनल असेंबली इकट्ठी हुई और नेशनल असेंबली ने क्या करना शुरू किया, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथ विद टर्मोइल, यानी बाकी का फ्रांस का जो हिस्सा था उसमें टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है बहुत उथल पथल, झगड़ा झंझट, परेशानियां लगी हुई थी। ठीक है, so while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. ओके, यानी बाकी का जो फ्रांस था उसमें बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और उन समस्याओं के कारण लोग बड़े परेशान थे। ठीक है, सो टर्मोइल एक ऐसी सिचुएशन है वेयर पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, सो अ सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। ठीक, ऐसा क्यों था, टर्माइल की जो सिचुएशन है, टर्मोइल की जो सिचुएशन है वो क्यों आई? इसलिए आई बिकॉज अ सिवियर विंटर मेंट ए बैड हार्वेस्ट। ठीक है, सो सिवियर विंटर मतलब उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। ठीक है, सो स्नोफॉल वाज ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, इट मींस देयर वाज ए बैड हार्वेस्ट। ओके, सो बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण फसल कम पैदा हुई। जब फसल कम हुई तो द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, रोटी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। ठीक है, जो रोटी बेचने वाले थे वो इस सिचुएशन को क्या करते थे, फायदा उठाते थे। एंड होर्डेड सप्लाई, ठीक है, सप्लाई नहीं करते थे क्योंकि हमेशा कीमत बढ़ती रहे। ठीक, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ stormed into the shops। ठीक है, सो काफी लंबे समय तक जो महिलाएं थी वो बेकरी के सामने लाइन में खड़ी रहती थी कि जैसे ही बेकरी ओपन होगी ब्रेड आएगी, हम ब्रेड खरीद लेंगे। ठीक, परंतु कई बार ऐसा होता था कि ब्रेड अवेलेबल नहीं थी। सो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन stormed into the shop। महिलाएं गुस्सा हो गई, है ना, और उन्होंने क्या किया, शॉप्स पर हमला कर दिया। ठीक है, तो पूरे कंट्री में इस प्रकार का हंगामा मचा हुआ था, लोग बाग बड़े परेशान थे। ठीक है, एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। ठीक है, इसी समय पर राजा ने क्या किया, पेरिस में, ठीक है, कंट्री के जो लोग थे, जो नेशनल असेंबली के लोग थे, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया, ट्रूप्स यानी सेना को ऑर्डर दे दिया। सो द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि लुई 16 ने अपनी आर्मी को, सेना को आदेश दे दिया कि पेरिस के अंदर घुसो और लोगों को मार के भगाओ, कंट्रोल करो। On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। ठीक है, अब जब किंग की फोर्सेस ने पेरिस पर अटैक किया तो
2 दिन के बाद 14th ऑफ जुलाई को द एजिटेटेड क्राउड, है ना, एजिटेटेड क्राउड मतलब जो गुस्साई भीड़ थी, उसने बैसाइल नाम के एक छोटे से फोर्ट पर हमला किया, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और अपने जो कैदी साथी थे उनको छुड़ा लिया। यहां तक बात समझ में आई? Yes, यस sir. Yes, आर्या? Yes, sir. अभी अब इसमें एक चीज बीच में मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी ताकि ये पूरा पैराग्राफ में कंप्लीट कर लो, ठीक है? अभी इसमें एक बहुत अच्छी सी चीज है ना, दैट इज रिलेटेड टू अ सिवियर विंटर। अभी इसमें क्या है, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई। अभी इसमें कहानी बेसिकली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रिद्धि आर यू लिसनिंग बेटा? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, घर पे कौन या आप लोग बाहर होटल से सब्जी खरीद के ले आते हो? Sir, market से। अरे नहीं, मार्केट से सब्जी तो खरीद के लाए, पर उसको पकाने का काम कौन कर रहा है? मम्मी। हाँ, है ना, कि डेली आप बाहर से खरीद के लाते हैं। Sir, your voice is breaking. हाँ, इट इज ब्रेक। अच्छा ये बताओ, घर पे चपाती जो है, रोटी घर पे बनाते हैं आटा पिसवा के, या बनी बनाई रोटियां किसी दुकान से लेके आते हैं? सर घर पे बनाते हैं। घर पे बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पूरे इंडिया का ट्रेडिशन है फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, है ना, हजारों सालों से इंडिया में यही व्यवस्था चली आ रही है कि हम लोग घर पर क्या बनाते हैं, चपातियां बनाते हैं, ठीक है, ओके। परंतु जो यूरोपियन कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज में चपाती के बजाय वो पिज्जा वाली ब्रेड देखी है आप लोगों ने? Yes, sir. Sir, they only eat bread. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. They only eat bread. नो दे नॉट ओनली ईट ब्रेड, बट जिस तरीके से हम चपाती यूज करते हैं वैसे वो लोग क्या यूज करते हैं? Bread. ब्रेड। तो क्या हम बोलते हैं आर वी ईटिंग ओनली चपाती? No, we get sabji with also. No, sir. हाँ, ठीक है। सो बस जितना काम हम चपाती से चलाते हैं उतना काम उनका किससे चलता था? ब्रेड से, ठीक। अब चपाती बनाना कंपैरेटिवली इजी है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी, परंतु फ्रांस के लोगों ने जो भी जिस जमाने से उनकी परंपरा चली आ रही थी, है ना, तो फ्रांस में क्या नहीं बनता था? Chapati. चपाती। वहां क्या क्या यूज करते थे? Bread. Bread. ब्रेड, ब्रेड। ठीक है, ओके। सो ब्रेड बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ओवन टाइप का सिस्टम चाहिए होता है। अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ा ओवन का सिस्टम, और उस जमाना हम ये माइक्रोवेव ओवन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक ये था कि हर घर, है ना, ईच फैमिली was not able to establish an oven in which could cook the bread। ब्रेड तैयार करते ऐसा ओवन हर घर में नहीं हो सकता था। तो फ्रांस सिस्टम क्या था कि जो बेकरी शॉप्स, हैव यू हर्ड द बेकरी शॉप्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We Yes, have sir. heard. Yes, sir. हाँ, सो फ्रांस के घरों में चपातियां घर पर नहीं बनती थी, बल्कि बेकरी शॉप से ये लोग क्या खरीद के ले आते थे? ब्रेड खरीद Bread. करके ले आते थे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. ब्रेड है तो खाएंगे कैसे? तो दे वे बटर, दे वर यूजिंग जैम, ओके, आई बात समझ में? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. और समटाइम्स दे कुक मीट, क्या क्या कुक कर लेते थे? Meat. Meat. मीट।
है ना। तो बस वो जो मीट है उसमें थोड़ा बहुत नमक वगैरह लगाया, मसाले भी बहुत कम यूज करते थे क्योंकि स्पाइसेस मोस्टली इंडिया से आते थे। तो बस उसको जैसे तैसे उबाला, नमक लगाया, पकाया, कुछ छिड़का, और बस एक हाथ में ब्रेड, एक हाथ में चिकन पीस, लेग पीस, एक टुकड़ा ब्रेड खाया, एक टुकड़ा लेग पीस खाया, बस। इंडियन फूड वेरी टेस्टी, बट द फिलिपिन आर टेस्टलेस। ठीक है, समझ में आ रहा Sir, है? rich people also did like this, only bread and something, bread and something. बेटा ये ठीक वैसा का वैसे ही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू द आउटिंग, है ना। आप सभी लोगों को फॉर एग्जाम्पल होटलिंग करना है ना। ठीक है, सो इट डिपेंड ऑन द अफोर्डेबिलिटी। कुछ लोग सिद्धार्थ प्रीमियर अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग ओल्ड सिद्धार्थ जाएंगे, कुछ लोग जो हैं छोटे मोटे होटल चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? Okay, sir. हाँ, सो रिच पीपल के केस में जैसे जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, कौन होते थे? Big businessmen and landlords. Landlords. हाँ, Landlord. तो they are having sufficient amount of money so that they could establish an earthen oven. उनके पास इतना पैसा होता था कि उन लोगों ने क्या एस्टेब्लिश कर लिए थे, अपने अर्दन ओवन एस्टेब्लिश कर चुके थे। अच्छा, इन लोगों के पास काफी पैसा होता था, तो दूसरे कंट्रीज से जो स्पाइसेस वगैरह आते थे वो स्पाइसेस ये खरीद लेते थे। ठीक है, निश्चित रूप से जैसे हम लोग इंडियन करी बनाते हैं वैसी करी तो नहीं बनती थी, परंतु द फूड of the rich people was comparatively more variety and tasty with comparison to, we can say, the poor Poor people. ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आज इथले का झालं आणि 2 है मिनिटं ना। ऐसे कि ये जो Okay, बेकर्स sir. थे, बेकरी के ओनर क्या शुरू किया, इस सिचुएशन का फायदा उठाया। होर्डेड सप्लाई मतलब उन्होंने ब्रेड की सप्लाई कम कर दी। अब ब्रेड की सप्लाई कम कर दी बोले तो कैसे? जैसे उन्होंने बोल दिया आज ब्रेड नहीं है। क्या नहीं है? Bread ही नहीं है. ब्रेड नहीं है, ब्रेड नहीं है, ब्रेड है ना, परंतु आज जो है मेरा तो ब्रेड पकोड़ा खाने का मन कर रहा है। तो जैसे ही थोड़ी सी भीड़ छटी, मैं चुपके से पीछे के दरवाजे से बेकरी वाले के पास गया, भैया आज तो बहुत जरूरी है, घर में पार्टी है, बर्थडे है, ब्रेड पकोड़े का प्लानिंग है और मैंने अपने फ्रेंड्स से प्रॉमिस कर दिया, मुझे कैसे भी ब्रेड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब क्या करेगा ब्रेड वाला? वो किसी को दुगने दाम में देगा। दुगने ज्यादा दाम में पैसे देगा ना, से ले लेगा। ठीक है, सो इस टाइप का जो होर्डिंग है ना, एक्सप्लॉइटेशन है, वो बेकर्स ने करना शुरू कर दिया। So after spending hours in long queue at the bakery, stormed into the shop. है ना, जो ज्यादा दामों पर नहीं खरीद सकते थे वो तो क्या करेंगे, वो ब्रेड लाने का काम उस समय पर, जैसा वहां का सिचुएशन था कि भैया बाजार से ब्रेड खरीद के लाना है, खरीदना है तो किसकी जिम्मेदारी है? विमेन ऑफ द फैमिली। तो में लाइन में मैक्सिमम कौन खड़ी रहती थी? घर की Women. विमेन्स Women. खड़ी रहती। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस Okay. सर। गॉट। सो जब काफी लंबे समय तक विमेन्स को बेकरी के क्यूज में खड़ा रहना पड़ता था, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि एंग्री विमेन्स ने स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप, मतलब हमला
कर दिया, शॉप पर अटैक पूरे फ्रांस के अलग अलग शहरों में चल रही थी उस टाइम पीरियड में, जब नेशनल असेंबली वर्साय में क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। अच्छा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो क्या एक दिन में बन जाएगा? No, sir. It No, takes sir. time. No, हाँ, sir. 20 जून से काम कब से चालू हुआ? जून। और 20 कौन सी June. तारीख आ और 14 कौन सी July. तारीख आ गई? 14 14 जुलाई. ना उस टाइम। हाँ, सो किंग ने क्या किया, ट्रूप्स को मतलब आर्मी को ऑर्डर दिया कि नाउ अब बहुत हो गए के नख, अटैक करो और ये पूरी असेंबली को भगाओ। ठीक, तो राजा ने आर्मी को इन लोगों को कंट्रोल करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, से गुस्से एंड स्टॉर्म मतलब अटैक किया, और वहां पर जो बैसाइल नाम का फोर्ट था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज 8:40 नाउ। आई एम गोइंग टू हेयरिंग। ठीक है Sir. हाँ, हेलो। Sir, all the people went, all the educated people went to make the constitution. Then, no person was there in to just handle these people, like to just see what is happening around. Now, Sandhya, total how many representatives were there? 1200. 1200 है ना? उसमें Yes, sir. जो थर्ड एस्टेट के एजुकेटेड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 600. 90%. 100. है ना? तो बाहर कोई ना कोई तो होगा, है ना? Yes, sir. इनको कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन तो थी, पर समस्या क्या थी? जब लोग बाग इतने परेशान हो जाएं कि दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, जब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो समझदार व्यक्ति चाहे कितना भी चिल्लाता रहे, लोगों को जो करना है वो वही करेंगे। Okay, गेटिंग sir. द पॉइंट, Yes, है sir. ना? Yes, Okay, sir. ओके, सो वी आर बाइंडिंग अप द सेशन हियर ओनली, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना? और बाय टुडे इवनिंग, ठीक है, ये जो आज का हमारा क्लास है वो यूट्यूब पर अपलोड हो ही जाएगा। अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके टीचमेंट ऐप पर भी मिल जाती है, मिलती है। Sir. Yes, Yes, sir. sir. After how many? Sir, after Yes, how many sir. days Yes, we sir. will get that portfolio photo? Means after how many days your quarantine will end? बेटा डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स, ओके? Okay, sir. हाँ, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Yes. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.